Hello students, welcome back to the second part of the chapter 6, Spectrum. So let's start. Our next topic is electromagnetic spectrum. So what is electromagnetic spectrum? अभी तो हम लोग ने देखा है स्पेक्ट्रम देखा, जो विजिबल स्पेक्ट्रम देखा हमने, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक बहुत छोटा सा पार्ट था। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल सर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So, according to Maxwell's electromagnetic theory, light is an electromagnetic wave, which is the combination of varying electric and magnetic fields at right angles to each other. तो मैक्सवेल सर के हिसाब से, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी है और मैग्नेटिक फील्ड्स है, जो आपस में राइट एंगल्स पे हैं। तो उनकी थ्योरी के हिसाब से ये था। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग वेवलेंथ्स के जो रेंज हैं वो क्या क्या है और उनके नाम क्या हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं। सो फर्स्ट इज गामा रेज, दैट इज गामा रेज। गामा रेज, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ? दैट इज लेस देन 0.01 नैनोमीटर। Okay, the wavelengths of gamma rays are less than 0.01 nanometer. Then comes the X-rays. X-rays. So X-rays, what is the range of wavelength? It is ranging from 0.01 nanometer to 10 nanometer. It is ranging from 0.01 nanometer to 10 nanometer. Okay, now after this X-rays, it is UV rays, that is ultraviolet rays. The wavelength of ultraviolet rays ranges from 10 nanometer to 400 nanometer. And after this UV rays, that comes the visible light, that is the visible rays. And what are the visible rays? That is VIBGYOR. And what is the range of this one? Earlier we have seen, that is 400 nanometer to 800 nanometer. Okay, after this visible light, after this rays, there comes IR rays, that is infrared rays, and the range of infrared rays are 800 nanometer to 1 millimeter. 800 nanometer to 1 millimeter. After this infrared rays comes microwave rays, that is ranging from 1 millimeter to 10 meter. 1 millimeter to 10 meter. And after microwaves, there comes radio wave rays. So radio wave rays the range of radio waves is more than 10 meter. The wavelength of these rays are more than 10 meter. So in this, only this, that is visible rays, that is ranging from 400 nanometer to 800 nanometer is visible to our eyes. We can see only this rays. And all the other rays except visible rays, except VIBGYOR, that is from violet to red, all the other rays other than this are invisible to us. That is gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, infrared rays, microwave rays, and radioactive rays, radio wave rays. These are invisible to us. Note that, you can note this one, that speed of all the rays are same, and velocity of all the rays are same. That is the speed of the light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so pause the video and write all the notes. We will continue. So we know the equation that V is equal to F lambda, that we have earlier studied in class 9 also, this equation. V is equal to F lambda, where V is the speed of light, that is equal to C, that I've already written here, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. F is equal to the frequency of the light, and this is lambda, that is wavelength of the light. Okay, from gamma rays, if we see the relation from gamma rays to radio wave rays, the wavelength, as we have seen that the wavelengths of gamma rays is less than 0.01 nanometer, and the wavelength of radio waves rays are more than 10 meter. So the wavelength, if we see from gamma rays to radioactive rays in this direction, if you see, means
the lambda, that is wavelength is increasing. Wavelength increases in this direction, increases from gamma rays to radio wave rays. And since we know that, see, V is equal to F lambda, that means F and lambda is inversely proportional. F we can write Vy lambda. So frequency and wavelength are inversely proportional. So if the wavelength is increasing from gamma rays to radio wave rays, that means the frequency, that is F, frequency of gamma rays and radio wave rays, this is going on decreases from gamma rays to radio wave rays, because lambda and frequency F is inversely proportional, and these are ranging from 0.01 nanometer and these are ranging more than 10 meters. So wavelength is increasing, so frequency is decreasing from gamma rays to radio wave rays. Now one by one we will see all the properties of all the rays, different rays. First is gamma rays. See, gamma rays are used for the treatment of cancer. You can write treatment of cancer, and are produced due to the transition of nucleides, that is the nucleus study, that is from radioactive substances. तो radioactive substances से gamma rays का प्रोडक्शन हो जाता है, और इसके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होता है. और ये गामा रेज कहाँ यूज होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ये कैंसर के ट्रीटमेंट में ये रेज यूज होते हैं. So X-rays, what are the properties of X-rays? X-rays are produced when a beam of high energy electrons is incident on a substance with high atomic weight. ये X-rays कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को जब इंसिडेंट किया जाता है, जब सब्सटेंस पर हिट किया जाता है, आपस में हिट किया जाता है दूसरे मेटल्स पे जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तब एक्सरेस का प्रोडक्शन होता है. व्हाट आर द यूज? इसका यूज क्या है एक्सरेस का? आप अक्सर कभी डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो एक्सरेज, वो लोग एक्सरेज लिखते हैं जब किन्हीं को हड्डियों का दिक्कत होता है, बोन्स में दिक्कत होते हैं, तो डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, जब किसी को चोट लगता है या हड्डी को देखने के लिए या बोन्स को देखने के लिए, तो एक्सरेज का यूज होता है. डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स. और कहां यूज होता है? स्टडी ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स. एटॉमिक क्रिस्टल्स का स्टडी करने में एक्सरेज का यूज होता है. नाउ नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट रेज, दैट इज यूवी रेज, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 10 nanometer to 400 nanometer, and it is invisible. These rays are also invisible, and very important point, these rays are chemically very active. It can cause an effect on photographic plate also. Okay, ये photographic plate पर भी effect होता है. और it can turn silver chloride, which is a very strong chemical agent. So it can turn silver chloride from blue to black, and then black to dark black also. It produces fluorescence in the certain material. कुछ materials में fluorescence भी produce होता है ultraviolet rays की वजह से. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बायोलॉजिकली यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बायोलॉजिकली यूजफुल भी है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन द स्किन. ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो विटामिन डी भी प्रोड्यूस करता है स्किन के अंदर. लेकिन कुछ सर्टेन रेंजेस ऑफ वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट रेंज में ही, जो हम लोग जान रहे हैं, जैसे 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर. तो कुछ रेंज ऐसे भी हैं इस रेज में जो स्किन बर्न भी हो सकता है, जिसकी वजह से सन बर्न, और जिसको स्किन बर्न भी बोलते हैं हम लोग, तो स्किन बर्न भी हो सकता है, जलन महसूस हो सकती है स्किन में, रेडनेस हो सकता है, रेडनेस हो जाता है स्किन में, और कुछ स्किन प्रॉब्लम भी हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से. लेकिन कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स आर आल्सो वेरी यूजफुल आल्सो, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन द स्किन, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन आल्सो, फॉर द स्किन लाइफ. ऑल्सो अल्ट्रावायलेट दैट इज कमिंग फ्रॉम द मर्क्यूरी लैम्प, जो मर्क्यूरी लैम्प से अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलता है वो हेल्प होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए. जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने का, उन्हें खत्म करने के लिए भी यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज का. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग द फूड्स एंड यूटेंसिल्स. और जो हमारे पास जो स्टेरिलाइजिंग पर्पस है, जैसे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं और घरों में भी यूज होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, यूटेंसिल्स को और फूड्स को सबको स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूजफुल है ये अल्ट्रावायलेट रेज. एंड दिस अल्ट्रावायलेट रेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. So you should go through this. It is more important than X-rays and gamma rays, because in earlier exams also these questions was asked.
So the next point is the infrared rays, that is IR rays. Infrared rays is also very much important. These two rays are very much important to study in ICSE exams because most of the questions comes from these two parts only. Rest you should have the knowledge of other rays also, but these two are very much important for your exams. So let us see the points of infrared rays. So infrared rays are the heat waves that which produces heat in the matter. वो किसी भी मैटर में हीट प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड रेज जो है. Infrared rays are the rays that comes after the visible light wavelengths, that is from 800 nanometer to 1 millimeter. These are ranging from 800 nanometer to, I am writing it here, 800 nanometer to 1 millimeter. Okay, so these are ranging from 800 nanometer to 1 millimeter, and these are invisible rays. Okay, invisible rays, it can be detected by, इसको हम लोग infrared rays को कैसे detect कर सकते हैं? There are instruments like thermometer is there, bolometer is there, thermopile is there. These are the instruments by which we can detect the infrared rays. Okay, so infrared rays also it is used in photography. It is also used in photography. In most of the mobiles also nowadays you can see night vision camera is available. Night vision. So how it is working? Due to the infrared rays. Infrared rays, because it travels very fast and it does not scatter. ये स्कैटर नहीं करता, ये फैलता नहीं है. ये जिस डायरेक्शन में आप पॉइंट आउट करोगे, जिस डायरेक्शन में आप इसे अलाउ करोगे, उसी डायरेक्शन में जाएगा. ये स्कैटर नहीं करता है और इसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है इसका, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत जल्दी ट्रेवल करता है आगे. सो इसको फोटोग्राफी में यूज करते हैं. ऑल्सो इन फॉग जब फॉग होता है तो कैसा अंधेरा सा छा जाता है, तो उस दौरान भी इंफ्रारेड रेज का यूज होता है देखने के लिए. These were used in the signals during war. एज अ सिग्नल इसको यूज किया जाता था वॉर में आप सामने सामने तो नहीं जा सकते हो ना, तो क्या होता था, ये लोग इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करके सिग्नल्स देते थे वॉर में. आप अपने घरों में जो रिमोट कंट्रोल्स हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल हैं और भी दूसरे रिमोट कंट्रोल है, आपने गौर किया होगा एक सामने में एक एलईडी लाइट लगा हुआ रहता है जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जब आप टीवी की तरफ वो पॉइंट आउट करोगे तभी वो रिमोट कंट्रोल करता है. तो वो रिमोट कंट्रोल भी क्यों कर रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेज, बिकॉज वो बहुत जल्दी ट्रेवल कर रहा है उस पॉइंट पे, तभी वो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो, कोई भी चैनल नंबर दबाते हो, वहां स्क्रीन पर तुरंत आपको शो होता है. दैट इज बिकॉज इंफ्रारेड रेज बहुत स्पीड से ट्रेवल करता है. ठीक है. सो एंड वन मोर थिंग, सी इंफ्रारेड रेज को और हम लोग कैसे देख सकते हैं? देख तो नहीं सकते, इनविजिबल है, लेकिन इसकी वेवलेंथ को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर इस वेवलेंथ को कैसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? विद द यूज ऑफ रॉक सॉल्ट प्रिज्म. जिस तरीके से सिंपल प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से हमने विजिबल लाइट को ऑब्टेन किया स्क्रीन पर, उसी तरीके से रॉक सॉल्ट प्रिज्म को यूज किया जाता है इंफ्रारेड रेज को ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन पर. और अल्ट्रावायलेट रेज में क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज होता है. क्वार्ट्ज प्रिज्म यूज होता है अल्ट्रावायलेट रेज में, उसको डिटेक्ट करने के लिए. So pause the video and write the notes. After this is the microwave rays. So microwave rays जो है उसका रेंज होता है 1 मिलीमीटर टू 10 मीटर. ओके, 1 मिलीमीटर से 10 मीटर तक इसका वेवलेंथ का रेंज होता है. ओके, बट ये माइक्रोवेव रेज भी इनविजिबल है. इसको भी हम लोग वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, इसको हम लोग नहीं देख सकते. बट इट इज यूज फॉर कुकिंग. माइक्रोवेव रेज जो है वो कुकिंग के लिए भी यूज होता है, और इट इज यूज फॉर कैरिंग टेलीफोन एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन अक्रॉस द कंटिनेंट, अक्रॉस द ग्लोब. टेलीविजन कम्युनिकेशन और टेलीफोन कम्युनिकेशन को कैरी करने में माइक्रोवेव रेज का इस्तेमाल होता है. द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द रेडियो वेव रेज. It is the range of these wavelengths are more than 10 मीटर and it is also invisible. ये भी विजिबल नहीं है. इसको हम लोग लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं. रेडियो वेव्स को हम लोग लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं. ओके, बिकॉज इट इज रेंजिंग मोर देन 10 मीटर. द वेवलेंथ ऑफ दिस रेज आर मोर देन 10 मीटर. सो इसको हम लोग लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं इसे. एंड इट इज यूज्ड इन फॉर रडार. फॉर कम्युनिकेशन. It is also exist in the AC power lines, that is alternating current power lines. Radio wave rays वहां पर भी exist होता है power lines में. So these were the some common properties and common uses of the different electromagnetic
spectrum, that is from gamma rays to radio wave rays. Now there are some common properties. There are some common properties we will see. Now these are some common properties of, so let us see now some common properties of the different wavelengths of light, that is from gamma rays to radio wave rays, and these properties are especially common with ultraviolet rays and infrared rays. So it is very much important. So let us see one by one. It do not require any medium for propagation, means आगे बढ़ने के लिए इन रेस को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑल ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड. सब लाइट है तो सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं. It is not affected by the electric and the magnetic field. These wavelengths, these wave rays, ultraviolet rays, infrared rays, and other wavelengths, these are not affected by the electric and magnetic fields. Also, these are electromagnetic radiations. This should be the first point. These are the electromagnetic radiations. It also obeys the laws of reflection and refraction. ये जो rays हैं सारे, ये laws of reflection and refraction को follow करते हैं. क्या था law of reflection? First of all, that incident in normal and the reflected ray lie on the same point, and angle of incidence is equal to angle of refraction. That is the reflection law. And the refraction law, that is sin I by sin R, if you remember. So these wavelengths also obey these laws, laws of reflection and refraction. And it can pass through fog, mist, etc. Like the infrared rays, ultraviolet rays, these can pass through the fogs, mist. Okay. Scattering of the light. So when a beam of light is incident on a particle of very small size, smaller than the wavelength of the light, light proceeds in all possible direction. All possible direction. क्या होता है? When a beam of light, कहीं से लाइट आ रही है और उसका एक बीम भी एक कोई भी पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है. यहां पर जो पार्टिकल है वो कुछ भी हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है. डस्ट पार्टिकल्स. एयर इज फुल ऑफ gas molecules. So gas molecules, water vapor, these all are as a object or as a obstacle which is acting. When a beam of light is incident on a dust particle or a gas molecule or water vapor, etc., then what happens? And the light having very small wavelength, what happens? They proceeds in all possible direction. They scatter. स्कैटर का मतलब हो गया बिखर जाना. तो क्या होता है कि एक बीम ऑफ लाइट जब आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट पर वो पड़ रही है, कैसा ऑब्जेक्ट? डस्ट पार्टिकल्स हो, गैस मॉलिक्यूल्स हो, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बिकॉज वेरी स्मॉल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर कमिंग. सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? लाइट ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. वो अपना ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ छोड़कर वो दूसरे तरफ, चारों तरफ बिखर जाता है. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग. You can also write like this. It is a phenomena in which light rays get deviated from its straight path. On striking an obstacle. What is this obstacle? Gas particles, gas molecules, dust particles, or water vapor. These are the obstacles. Okay, so it can be written as this way also. It is a phenomena in which the light rays get deviated from its straight path on striking the obstacle. This phenomena is called as scattering of light. Now, according to Rayleigh's law of scattering. According to Rayleigh's law of scattering, इन्होंने क्या लॉ दिया? इन्होंने लॉ लिखा, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. जो इंटेंसिटी होगा, जो अब ये किस इंटेंसिटी से आया था, मान लो ये आई इंटेंसिटी से आया था और तो फिर ये बिखर गया, ये बट गया, चारों तरफ बिखर गया, तो इंटेंसिटी सबकी घट गई. हर लाइट का जो लाइट यहां से डिफ्लेक्ट हुआ सबका इंटेंसिटी घट गया. सो अकॉर्डिंग टू रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट.
द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू fourth power of the wavelength of light. Okay, so since now from this condition we can say, since the wavelength of violet and wavelength of red, which is more, this is 400 nanometer, this is 800 nanometer, so wavelength of red is more. Since the wavelength of red color is more, so the scattering of red color will be the least, because it is inversely proportional, and that to fourth power. So scattering of violet will be more and red will be, scattering of red light will be very less. So अकॉर्डिंग टू रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग के थ्रू क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का, जो लाइट इंटेंसिटी आ रही है जिस लाइट, उसकी वेवलेंथ का फोर्थ पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर, सो द इंटेंसिटी विल बी वेरी लेस. इंटेंसिटी ऑफ this red color will be very less, so scattering of this color will be, red color will be very less. So in this VIB GYOR, so we can see that the scattering of violet is more. Okay, so as we go this way it decreases, the scattering decreases. Okay, now some examples of the scattering of light. Since from the previous note, wavelength of red color is more than the wavelength of violet color, so the intensity or scattering, both we can say, the intensity or the scattering of the violet color is more than the scattering of the red color. So some of the examples are, which this is the important part, because 2 marks questions or 3 marks question come from the reasoning types, from this part only. So understand it very nicely. So number 1 example, the red color light is used to signal in wars. So the red color light is used as a signal in wars. क्यों रेड कलर ही क्यों यूज होता है? As because the red color, the wavelength is very more. Okay, the wavelength is more and the intensity is the least. ये बहुत दूर तक जाएगा, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत दूर तक जाएगा, और इसकी इंटेंसिटी रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, मतलब स्कैटरिंग पावर इसका बहुत कम है, तो ये स्कैटर नहीं होगा, लीस्ट स्कैटरिंग है ये स्कैटर नहीं होगा, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है. तो ये रेड कलर लाइट जो है वो वॉर्स में यूज होता था सिग्नल्स देने के लिए, डेंजर सिंबल्स देने के लिए. ओके, तो रीजन आप यहां से भी लिख सकते हो, सिंपल रीजन है कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर, सो रेड कलर ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस. रेड कलर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस, आई एम राइटिंग द जस्ट द पॉइंट, यू कैन मेक अप द सेंटेंसेस. इट ट्रेवल्स, हम यहाँ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं जिससे आप सेंटेंस बना लोगे. जो मेन कीवर्ड्स है, जिसका आंसर में कीवर्ड्स है, वो हम लिख दे रहे हैं. सो इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस, रेड कलर ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, and the scattering of the red light is very least, so least scattering. ये दो वजह है क्योंकि बहुत दूर तक सिग्नल्स देने के लिए काम आता था, और ये स्कैटर भी बहुत कम होता था, तो स्कैटर कम होता था तो सिग्नल देने में आसानी होती थी. बहुत दूर तक हम लोग वॉर्स में क्या होता था, सिग्नल दिया जा सकता था रेड कलर से, इसलिए रेड कलर यूज होता है वॉर्स में सिग्नल्स देने के लिए. दूसरा वजह क्या है? दूसरा, स्काई अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम्स. स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान ज्यादातर टाइम ब्लू दिखता है. अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम. आपने गौर किया होगा कि जो आसमान है वो हमेशा या मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ब्लू कलर में दिखता है हमें. क्यों वो ब्लू कलर में दिखता है? बिकॉज ऑल द डस्ट पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द एयर, ऑल द डस्ट पार्टिकल, जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, चारों तरफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं. जबकि जब देखा जाए तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा वायलेट का स्टैकिंग होता है, जैसे VIBGYOR. तो दीज आर द कलर्स, ये सब कलर्स है जो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, मोस्ट स्कैटर्ड. ये सब कलर्स है बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है. जब ये स्कैटर हो रहा है तो आसमान में यही दिखेगा, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऑल आर सम ब्लू शेड्स, ऑल आर ब्लू शेड्स, ये सब सारा ब्लू का शेड्स है. तो डस्ट पार्टिकल की वजह से, गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से जब लाइट उस पर
इंसिडेंट हो रहा है तो वो लाइट वहां से क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। और ज्यादातर ये कलर्स जो ब्लू शेड्स के कलर हैं, VIB, दैट इज वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, इसीलिए हमें आसमान ज्यादातर टाइम ब्लू दिखता है। ये बहुत लीस्ट हो रहा है, ये स्कैटर ही नहीं हो रहा है, बहुत दूर तक ट्रेवल जरूर कर रहा है लेकिन स्कैटर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कलर्स हमें नहीं दिखते हैं। अच्छा ठीक है, स्काई तो ब्लू दिखा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में, दो टाइम में, एट सनराइज एंड सनसेट, ये दो टाइम में तो ब्लू नहीं दिखता है आसमान। ये दो टाइम में ज्यादातर आसमान कैसा दिखता है, रेड, इट अपियर्स रेड, ऑरेंज, दिस टाइप ऑफ कलर्स, रेड, ऑरेंज, है ना। तो आसमान जब सनराइज के समय में या सनसेट के समय में ज्यादातर आसमान रेड कलर का, ऑरेंज कलर का ऑब्जर्व होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब ये अर्थ है, सन जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो क्या होता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, सन तो अपनी जगह पे फिक्स है, दिस इज द सन, ये तो अपनी जगह पे फिक्स है। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है, सबसे पहले लाइट ऐसे जा रहा था, है ना, दिन के टाइम में, या हाँ दिन के टाइम में, और शाम होते होते सनराइज के टाइम में, सनराइज या सनसेट के समय में क्या होता है कि ये रेज स्लांटिंग हो गया, है ना, स्लांट रेज, है ना, ये रेज स्लांटिंग हो गया। जब स्लांट हो गया तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मींस ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस समय क्या होता है, जो ब्लू है, इंडिगो है, और ये वायलेट है, ये स्कैटर पहले ही हो चुका होता है, ये पहले ही स्कैटर हो चुका होता है बीच रास्ते में ही। और जब ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहा है, लाइट बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि इस समय में ये सब लाइट्स जो हैं, YOR, ये सब लाइट्स हैं, वो स्कैटर होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो पहले स्कैटर हो गए, ये सारे स्कैटर हो गए। अब जब ये स्कैटर हो गए तो अब इनकी बारी थी, तो अब ये धीरे धीरे स्कैटर हो रहे हैं, तो इसीलिए रेड, ऑरेंज, येलो, दिस ऑल आर द शेड्स ऑफ रेड, लाइट कलर्स हैं ये। तो ये हमें आसमान ऑरेंज कलर का, रेड कलर का अपीयर होता है शाम के टाइम में, सुबह सुबह के टाइम में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली समझना क्या था, समझना ये था कि सनराइज और सनसेट के समय में हमें आसमान रेड या ऑरेंज इसलिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि रेज स्लांटिंग हो जाते हैं, रेज बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं, और ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बीच रास्ते तक VIB, ये सब कलर्स जो है वो पहले ही स्कैटर होकर खत्म हो जा रहे हैं, पहले ही स्कैटर हो जा रहे हैं। और फिर जो लाइट बच रहे हैं, जो और गैस मॉलिक्यूल्स आगे है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब इस कलर्स को स्कैटर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के समय में येलो, रेड, ऑरेंज, इस शेड्स में हमें अर्थ एज्यूम होता है, हमें दिखता है, आसमान हमें वैसा दिखता है। अच्छा, ये तो दो टाइम हो गया। एट नून, एकदम 12 बजे के टाइम में, 12-1 बजे के टाइम में आसमान कैसा दिखता है, स्काई अपीयर्स वाइट। अब ये क्यों, एट नून वाई द सन अपीयर्स वाइट, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट पाथ, है ना। स्ट्रेट पाथ में नून में क्या हो रहा है, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। नून मतलब ऑन दी हेड है, सन रेज ऑन दी हेड, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ऑन हेड है मतलब परपेंडिकुलर टू दी अर्थ है, जो रेज है वो परपेंडिकुलर है। तो ऑल द कलर्स स्कैटर इक्वली, जितने भी कलर्स हैं यहाँ पे इस रेज में, जितने भी कलर्स हैं वो क्या हो रहा है, इक्वली स्कैटर हो रहे हैं, ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली। और न्यूटन सर के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, डिस्क मेथड के हिसाब से क्या हमने देखा था कि जब सब कलर आपस में मिक्स हो रहा है तो वो कैसा अपीयर होता है, वो व्हाइट अपीयर होता है। ओके, और वो एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था, इन्वर्टेड प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, की व्हाइट लाइट एक तरफ से गया, पहला प्रिज्म से विबग्योर आया, और वही विबग्योर हमने सेकंड इन्वर्टेड प्रिज्म पे रखा तो फिर से वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस किया। तो उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि सन एट नून 12 बजे 1 बजे के टाइम में क्या होता है कि जो रेज हमारा है वो एकदम परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ है, ऑन हेड है, तो और सब क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और सब कलर्स, सारे कलर्स, ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली, सारे कलर्स इक्वली स्कैटर कर रहे हैं। जब सारे कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो वो कैसा अपीयर होगा, वो व्हाइट अपीयर होगा। इसीलिए नून दिन एकदम दोपहर के टाइम में हमें स्काई जो है, आसमान जो है वो व्हाइट कलर दिखता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए स्काई के बारे में, ये 3 पॉइंट हो गए। पहला, ये ब्लू क्यों दिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, VIB सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, और यही कलर्स हमें अपीयर होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है। सनराइज और सनसेट के समय में क्या होता है कि ये जो लाइट रेज है वो स्लांटिंग रहता है, तो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, और बीच रास्ते तक VIB पहले ही स्कैटर हो चुका होता है, अब YOR स्कैटर होना स्टार्ट होता है। तो अब जब ये
कलर्स, ये शेड्स के कलर जब स्कैटर होंगे तो ये कलर हमें दिखेंगे। फिर दिन के टाइम में क्या होता है कि सारे कलर्स, सिंस ये परपेंडिकुलर है, रेज ऑफ लाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सारे कलर्स इक्वली स्कैटर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सारे कलर मिक्स हो रहे हैं, आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है कलर्स का। जब 7 कलर्स कॉम्बिनेशन होता है तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। ओके। अच्छा, जब कोई एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, वहां से कोई फोटो क्लिक करते हैं अर्थ का, मून का, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हमें देखेंगे। जैसे अर्थ का जब वो फोटो क्लिक करते हैं यूनिवर्स से, तो कैसा अपियर होता है, वो ब्लू अपियर होता है। क्यों ब्लू अपियर होता है? क्योंकि आउटर एटमॉस्फेयर में दिस इज अर्थ अपियरिंग ब्लू, अर्थ अपियर्स ब्लू फ्रॉम यूनिवर्स। Why? Earth appears blue from universe. Why? Because in outer atmosphere, VIB, these 3 colors scatter most. These 3 colors scatter the most. इसीलिए हमें अर्थ जो है वो ब्लू विजिबल होता है फ्रॉम यूनिवर्स से। और यूनिवर्स से ही जब हम लोग मून को देखते हैं, मून को फ्रॉम यूनिवर्स जब मून को देखते हैं, तो मून कैसा दिखता है हमें? मून ब्लैक दिखता है, जो ग्रेइश कलर में रहता है, ग्रेइश कलर में दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज, तो वो कैसा दिख रहा है? ग्रेइश कलर का दिख रहा है, ग्रेइश कलर या ब्लैक कलर का हम लोग बोल सकते हैं। दैट इज डीप वायलेट से, और हम थोड़ा डीप जाएंगे तो वो ब्लैकिश कलर्स में दिखेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी, जो VIB कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो रहा है यहाँ पर। और आसमान में स्काई, जब हम लोग यूनिवर्स से स्काई में देखते हैं, स्काई को देखते हैं, स्काई का जितना भी पिक्स आपने देखा होगा, गूगल पर देख लो या कहीं पर भी देख लो, जो यूनिवर्स से लिया गया है, जो मून से लिया गया है, जो यूनिवर्स से लिया गया है, तो ये कैसा अपियर होता है? इट अपियर्स ब्लैक। क्यों ब्लैक अपियर हो रहा है? ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि वाई द स्काई अपियर्स ब्लैक व्हेन द पिक्स आर टेकन और व्हेन व्यूड फ्रॉम यूनिवर्स और द मून। जब मून से देखते हैं स्काई की तरफ या यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स में स्काई की तरफ देखते हैं, तो वो स्काई हमें ब्लैक अपियर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट सर्टेन लेवल। बहुत ज्यादा वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो नो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, no atmosphere means no propagation of light, therefore the sky appears black when viewed from moon or viewed from the universe। लेकिन इसी यूनिवर्स से या मून से या अर्थ से जब हम लोग सन की तरफ देखते हैं, जब हम लोग सन की तरफ देखते हैं तो वो व्हाइट अपियर होता है। क्यों व्हाइट अपियर होता है? बिकॉज ऑल द लाइट्स दैट आर कमिंग, दैट आर इमर्जिंग, आर इक्वली। सन में क्या होता है? ऑल द लाइट्स आर इमर्जिंग इक्वली। जितने भी लाइट्स हैं जो सब सन की तरफ हम लोग देखते हैं, तो जितने भी लाइट्स हैं जो वहां से इमर्ज हो रहे हैं, तो वहां से निकल रहे हैं, तो वो क्या है? वो इक्वल फ्रीक्वेंसी, या हाँ इक्वल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, इक्वल वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो वहां से वो जो लाइट निकल रहा है, वहां से जो इमर्ज हो रहा है, वो सब इक्वल वेवलेंथ में है। जब इक्वल वेवलेंथ में है तो इक्वल स्कैटर हो रहे हैं। जब इक्वल स्कैटर हो रहे हैं तो सब क्या हो रहा है? सब मिक्सअप हो जा रहा है, सब कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स हो रहा है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स हो रहा है तो वो कैसा अपियर होगा? व्हाइट अपियर होगा। इसलिए सन को जब देखे होगे, सन व्हाइट बहुत शाइन करता है, बहुत शाइन कर रहा है। शाइन करने का मतलब ही हुआ कि वो व्हाइट अपियर हो रहा है ना। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यू डू नीड नॉट, एक्चुअली क्या है कि स्काई जो है, हम लोग जो दिन में देखते हैं, जो सनसेट और सनराइज के समय देखते हैं या दोपहर में ही देखते हैं, तो हमें वो डिफरेंट कलर्स का ऑब्जर्व होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स हो रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअली में क्या है? स्काई कंप्लीटली ब्लैक है। ओके, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द syllabus